This is my introduction. Those who are seeing me for the first time, my name is Sahir. I am with 9x Markets now for almost this whole year. I have 8 years of experience. Before I was helping clients in Europe, managing their risk, handling their accounts, teaching them the right way to trade in the markets. Of course, I don't give any advice. I don't say you buy or you sell, because advice is something, if you work with a regulated broker, you should never ever do it. And as an audience, you should also not at all take the signals or advice, because even if you are losing money, try to learn something from it. Don't give somebody else that you use the signals and the person making you money, making you losses. So always make sure that learn something. So this is what I was doing. My focus has always been helping traders grow their knowledge and confidence in the financial market. And coming to the 9x Market platform, as you guys can see, 9x Market is a dynamic and client focused trading platform. We offer support, we offer one-to-one analysis, and what we offer right now, you are having it, which is this webinar. This webinar is completely free. It's been 6-7 months. We are still keep on giving the free webinar, and this is why a lot of people are gaining the confidence and they know how to trade in the market. So let me just move to the next slide. So topics for today. These 3 topics: what is online trading, physical assets and CFD instruments, and the third one is the platform presentation. Okay, so these are the 3 topics we will be talking about. Remember, this webinar is for those more who are joining it for the first time, or who are very new in the market, or don't understand how this trading works. So without wasting any time, we're gonna start. What is online trading? Now I just want all of you guys to pay attention for just 1 minute on the slide here. So CFD, the definition, the CFD full form is contract for differences. Trading is a way to speculate on the price movement of financial market. So in CFD, you are not actually owning any asset, you are just trading on the price movement. For example, I'm sure everybody knows what gold is, right? So gold is something, if you buy it physically, you have the physical gold in your hand. But when you are doing gold as a CFD trading, you are trading on the price of gold. You are not owning the gold. So there is a big difference. Okay, so this is what CFD, contract for differences, means, and this is what online trading exactly means. Okay, then you come with the benefits of online trading. Now everything has pros and cons. All right, so now I will tell you the benefits of online trading. Back in those days, we all heard from our parents, grandparents, that buying physical gold, for example, is the best investment. No doubt, I completely agree, but the world is changing. We are sitting in 2025, and in 2025 the digital currencies, digital trading, digital assets is grown quite widely. So that's why the approach, the mindset of people in 2025 is changing as well, and they're seeing the online trading, maybe they're seeing this as a future, which is not at all wrong if I say. Why? Because this is actually quite potential. A lot of people, I'm sure you must be seeing, making good money. Of course, there is risk involved in the market, but that's why you have the risk management tools. So the benefits for the online trading we have here is leverage. Trade larger position with a smaller amount of capital, increasing potential returns. So leverage, we all understand, the higher the leverage, the higher the risk and reward. And what is leverage? Leverage is something which your broker is providing you. So for example, if your broker is providing you 400 of leverage, that means with $100 account, you can trade up to 400 worth of instrument or capital. I can see some questions coming up. वेरी इंफॉर्मेटिव हिंदी में. ओके, चलिए मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा हिंदी में भी बोलने का, बट वी हैव सम इंग्लिश ऑडियंस एज वेल. दैट्स व्हाई आई जस्ट नीड टू मेक श्योर के जो इंग्लिश ऑडियंस है उसको भी समझ में आए, और जो हिंदी ऑडियंस है अपनी उनको भी. तो लेवरेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. लेट मी एक्सप्लेन दी फ्लेक्सिबिलिटी. सो गो लॉन्ग means buy, or short means sell. Profit from both rising and falling market. This is one of the biggest benefit. ये सबसे बड़ा benefit है market का, कि चाहे market नीचे गिरे या ऊपर जाए,
you can trade on both direction and make profit with correct risk management. Either the market goes up or down. The beauty of CFD trading is that you can make money both ways with correct risk management. Wide range of assets like gold, oil, stocks, indices. You have so much. आपके पास रेंज बहुत है यहाँ पर देखने के लिए. क्या फॉरेक्स को कर सकते हो, गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, ऑयल, स्टॉक्स, इंडिसेस, इवन क्रिप्टोज. सो देयर इज सो मच आपके लिए ट्रेड करने के लिए जो आपको CFDs में मिलता है. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट. डू यू गाइज अंडरस्टैंड? इफ यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी में करके, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड. जस्ट गिव मी अ थम्स अप. वी हैव मोर हिंदी में समझाओ. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मैंने आप लोगों को बताया, वाइड रेंज का बताया, लेवरेज का बताया. चले मैं हिंदी में इसको ज़्यादा कंटिन्यू करता हूँ एंड वी विल गो फ्रॉम देयर. नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाई ट्रेडर्स चूज ऑनलाइन ट्रेडिंग. जो ट्रेडर्स हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों चूज करते हैं? फर्स्ट वाला है हमारा हाई लिक्विडिटी. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेडेड डेली, इजी टू एंटर एंड एग्जिट. जो फॉरेक्स की जो मार्केट है उसके अंदर इतना वॉल्यूम है, इतनी लिक्विडिटी है कि ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है. सो दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ द हाई लिक्विडिटी, इट्स वेरी गुड मार्केट टू गेट इन्वॉल्व विद. 24/5 एक्सेस है जो मैंने भी आपको बताया कि ये मंडे टू फ्राइडे चलती है. सो 24/5 एक्सेस है, मतलब आप 5 दिन तक ट्रेड कर सकते हो. लो कॉस्ट मींस लो स्प्रेड एंड ऑफन नो कमीशन. हमारे पास 9x मार्केट्स पे जो अकाउंट हैं उसमें आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता. काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो कमीशन चार्ज करते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट 9x मार्केट, no commission. Okay, on some of our accounts there's only one account we charge commission, but for rest of them no commission. Low spread is the best thing what we offer to our clients. Even अगर आप कोई broker भी ऐसा ढूंढ रहे हो जिसके साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, 9x is a very good option. क्यों? क्योंकि उसके जो spreads हैं वो दूसरे brokers से काफ़ी लो हैं. The spreads are very low. Leverage मैंने अभी आप लोगों को समझाया क्या होता है कि जब आप ट्रेड लार्जर पोजीशन विद स्मॉलर कैपिटल पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न. जो एक तरीके का आप ये समझ लो कि ये आप बोरो कर रहे हो अपने ब्रोकर से 400 टाइम्स आपका जो अपना कैपिटल है. तो आप जितना भी बोरो कर रहे हो, अगर आपके पास सिर्फ अपने अकाउंट में $200 पड़ा है जो आपने डिपॉजिट करा है, दैट मीन्स फ्रॉम ब्रोकर यू आर गेटिंग अनदर 400 टाइम्स लेवरेज. तो वो आपको मिल रही है जिससे आप वो 400 टाइम्स वाली बड़ी पोजीशंस को ओपन कर सकते हो. तो लेकिन इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है और आपका जो रिवॉर्ड है वो भी बढ़ जाता है. आपकी लेवरेज से आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हो, लेकिन आप नुकसान करके अपना पूरा कैपिटल लॉस भी कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट वर्क्स बोथ वे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. ग्लोबल मार्केट है. ट्रेड करेंसीज फ्रॉम मेजर इकोनॉमीज लाइक, यहाँ पर आपको यूएस के स्टॉक्स मिलेंगे, करेंसी मिलेगी, ईयू की मिलेगी जो कि यूरोप है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड मोर. तो आपको यहाँ पर बहुत वैरायटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं और उसके बाद यू डोंट नो व्हाट टू डू. तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप वंस अगेन. ये जो वाई ट्रेडर्स चूज ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला मैंने आपको समझाया. आई कैन सी सो मेनी हार्ट्स, थैंक यू फॉर दैट. चलें नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. अच्छा, अभी प्रोडक्ट्स के बारे में ही हम बात कर रहे थे कि क्या क्या हमें CFDs के अंदर मिलता है. तो आप देखो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिख रहे होंगे, दैट मीन्स आपके पास स्टॉक्स ट्रेड करने का ऑप्शन है. कमोडिटीज में आ जाता है आपका गोल्ड, प्लेटिनम, पलेडियम, सिल्वर, जितने भी मेटल हैं तो वो आते हैं आपके कमोडिटीज के अंदर, आप वो ट्रेड कर सकते हो. करेंसीज में FX वेरी सिंपल. क्रिप्टो में सबको पता है बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन, ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं वो सब आ जाते हैं. और फ्यूचर्स में जो गोल्ड का फ्यूचर्स हो गया या आपका सिल्वर का फ्यूचर, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सब हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. और CFD में भी मोस्टली ये सब चीज़ें ट्रेड होती हैं. अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा. आई विल आस्क यू गाइज वन क्वेश्चन. जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है, बेस्ड ऑन दैट आपको कितना समझ में आया. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेडेड इन द फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट में क्या ट्रेड होता है? स्टॉक्स, करेंसीज, कमोडिटीज या रियल एस्टेट? गिव मी योर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन. तो मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ और मैं आंसर का वेट करता हूँ. सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर करना है पहले, देन आई विल आस्क द नेक्स्ट वन. सो आई एम वेटिंग के कोई आंसर करता है. तो ए, somebody said A. Forex market. क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा look at the question carefully. What is traded in the forex market? Yes, currencies. Someone gave the right answer. Who said A and D? Very bad. You are not paying attention. You need to pay attention. Yes, Bharat, Swapnil, very good guys. Currencies. This is the right answer. Fantastic. दूसरे वाले पे चलते हैं. CFD trading. Do you own the actual asset?
क्या आप यहाँ पर असली में उस प्रोडक्ट को होल्ड करते हो? यस, नो, समटाइम्स, ओनली इन गोल्ड. व्हाट इज द आंसर? वंस अगेन राइट इट डाउन. Okay, B. Okay, someone said B. Okay, I'll wait for one or two more people to answer and then we'll see. I can see one person said D, only in gold. Okay, I will not say your name, but you need to pay attention. D is not the right answer. The correct answer is Vedant. You gave it first, B, which is no. बिकॉज CFD ट्रेडिंग में आप लोग कुछ भी फिजिकली नहीं करते हो. अगर आप CFD में गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट डजेंट मीन कि आपने गोल्ड खरीद लिया, वो आपके हाथ में है और आप उसको फील कर सकते हो या आप उसको खरीद कर घर ले आए. नो, CFD मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, इट्स बेस्ड ऑन प्राइस ट्रेडिंग, कि आप उसके प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो. ओके, सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. कोई बात नहीं, डोंट नीड टू से सॉरी, वी ऑल ओवर हियर टू लर्न. हम लोग यहाँ पर लर्निंग के लिए ही आए हैं और लर्न करेंगे तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे. सो नो सॉरीज एंड नथिंग हियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ ये एग्जाम्पल, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, इससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल. डिफरेंस बिटवीन दी बाय एंड व्हाट इज दैट, डिफरेंस बिटवीन बाइंग फिजिकल एसेट वर्सेस CFD. सॉरी, मैं बीच बीच में आप लोगों के जो रिप्लाईज हैं वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक हम लोग Q&A थोड़ा एंड में रखते हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में बोलते बोलते अगर आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा भी फोकस कहीं और से कहीं शिफ्ट हो जाएगा. तो वील कीप द Q&A फॉर द एंड, बट अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एंड देन हम बाद में थोड़ी सी चिट चैट करेंगे. विल टॉक एट द एंड. राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स. सो डिफरेंस बिटवीन बाइंग फिजिकल एसेट एंड CFD. अब आप देखो, एक साइड पे है, ये गोल्ड का एग्जाम्पल है बाय द वे, गोल्ड एग्जाम्पल. बाइंग फिजिकल गोल्ड, एक इंसान है जो फिजिकल गोल्ड बाय कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यू पे फुल प्राइस. मान लो अगर गोल्ड का प्राइस $3400 का चल रहा है, तो आपके पास फुल $3400 होने चाहिए, देन ओनली यू कैन बाय इट. ठीक है ना? जब आप गोल्ड खरीदने शॉप पे भी जाते हो तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है. यू नीड टू पे फुल व्हेन यू गो टू द शॉप टू बाय. यू ओन द रियल गोल्ड. बेस्ट थिंग इज कि आपके पास जो है वो रियल गोल्ड आ जाता है जब आप ये फिजिकल वाला खरीदते हो, जो कि आप अपने घर ले जा सकते हो. यू कीप इट एट होम और इन सेफ. या तो आप उसे अपने घर में रखते हो या बैंक में, लॉकर में, कहीं पे भी रख सकते हो. फैंटास्टिक. इफ द प्राइस गोज अप यू सेल इट फॉर प्रॉफिट. अगर उसका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद प्राइस बढ़ जाता है, जो कि होता है मोस्टली, तो लोग या तो उसको बेच देते हैं और रखते हैं कि और प्राइस बढ़ेगा तो बाद में बेचेंगे. एंड लास्ट वन इज, इसमें टाइम लगता है बाय या सेल करने में. अगर आपको बाय करना है तो आपको 10 दुकानों पे जाना पड़ेगा, ज्वेलरी शॉप्स पे, या बेचना भी है तब भी आपको देखना पड़ेगा वेयर यू गेटिंग द बेस्ट रेट अच्छा किधर है क्या नहीं है. दैट मीन्स आपको टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, तब आपको या तो खरीदने के लिए अच्छे रेट पे मिलेगा या सेल करने के लिए अच्छे रेट पे आप बेच सकते हो. नाउ ऑन द अदर साइड एक और पर्सन है, वो गोल्ड को अब CFD में ट्रेड कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, यू ओनली पे अ स्मॉल पार्ट. उसको ये पूरे प्राइस की जरूरत नहीं है $3400 की, उसने सिर्फ $700 से स्टार्ट करा. और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसके पास क्या था, लेवरेज, जो मैंने भी आपको समझाया. उसको अपने ब्रोकर से जो लेवरेज मिली, उसकी वजह से खाली $700 से ही वो $3400 तक की ट्रेड्स को ले सकता था, जिससे वो प्रॉफिट बना सके. इसमें क्या होता है, यू डोंट ओन रियल गोल्ड, जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास गोल्ड असली में नहीं होगा कि जिसे आप घर ले जा सको. आप सिर्फ प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो. यू जस्ट ट्रेड द प्राइस मूवमेंट, जो मैंने अभी बोला. कैन मेक मनी इफ प्राइस गोज अप और डाउन. अब इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है, जैसे फिजिकल गोल्ड में था, जब प्राइस ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा. इसमें बाय चांस अगर प्राइस नीचे भी गिरने लगा तो जो पर्सन है वो सेल करके भी प्रॉफिट कर सकता है, और बाय जा रहा है तो बाय करके भी प्रॉफिट कर सकता है. मतलब आप इसमें दोनों डायरेक्शन में बाय एंड सेल कर सकते हो. ठीक है? और जो इसका लास्ट पॉइंट है, जो बेस्ट बेनिफिट है, वो है फास्ट एंड इजी टू ट्रेड ऑनलाइन. जैसे आपको शॉप्स पे जाना पड़ता है, यू नीड टू गो आउटसाइड, देखना पड़ता है कहाँ मुझे सबसे अच्छा रेट मिल रहा है, उसी शॉप पर जाके खरीदूंगा या बेचूंगा. बेस्ट चीज, आपने CFD में क्या करा, आपके पास जो ऐप है 9x मार्केट की, आपने देखा, आपने $100 का प्रॉफिट बनाया, यू जस्ट डू अ क्लिक लाइक दिस, आपकी ट्रेड क्लोज हो गई, दैट्स इट. आपके $100 $200 जो भी आपका PNL है वो सिक्योर हो गया. तो ये आपका टाइम कन्वीनियंट भी है, इसमें आपका टाइम भी बचेगा. यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो कितने लोगों को CFD लग रहा है कि इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. मैं ये नहीं कह रहा कि CFD को सब लोग बोलेंगे इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, बट राइट मी डाउन. मैं फिर से 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ. टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक्स दैट CFD इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट. आई विल वेट, आई वांट टू सी. यस, आई कैन सी somebody writing yes. 1 or 2 more answers and then I'll move ahead.
एटलीस्ट द गुड थिंग इज कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या होता है। दैट्स वाई किसी ने लिखा है यहाँ CFD इज गुड सर, 100% वेरी गुड, क्योंकि इसमें आप सेल पे भी बाय पे भी दोनों तरह बनाते हो। लेकिन जब आपने सोना खरीदा है और वो नीचे गिरने लगे, सिर्फ आप फिर भगवान से दुआ करते हो कि इसको जल्दी से ऊपर पहुंचाओ ताकि मेरा प्रॉफिट हो। तो या इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। चलें, वेरी नाइस, थैंक यू गाइस, आई कैन सी सम लवली रिस्पॉन्स। चलें फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्जिन एंड लेवरेज। लेवरेज हमने समझ लिया है, बट फिर से चलें आ गया है तो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो दोबारा से भी समझ लेते हैं। व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज अलाउज यू टू कंट्रोल अ लार्ज ट्रेड साइज विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। वही जो मैंने आपको बताया अभी, और अब हमारे पास उसका एक एग्जांपल भी है यहाँ। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस स्लाइड पे करो, इफ यू जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्लाइड्स हियर, द एग्जांपल फॉर लेवरेज इज 1:100। आपके ब्रोकर ने, मान लो 9x मार्केट का आपका ब्रोकर है जिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसने आपने उस पे 100 का लेवरेज लिया हुआ, मींस यू कैन ट्रेड टू 10,000 विद जस्ट $100। क्योंकि क्या हुआ, आपके अकाउंट में सिर्फ $100 था और आपकी जो लेवरेज थी वो 100 थी। तो ये 100 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आएगा। मतलब आप सिर्फ $100 से $10,000 तक की ट्रेड्स ले सकते थे। दिस इज द मैजिक ऑफ लेवरेज, बट विद हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। नाउ कम बैक्स टू मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन? अब ये एक नई चीज है मार्जिन, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी थी, वी डिडंट डिस्कस इट येट। मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू ओपन अ पोजीशन, इट्स अ परसेंटेज ऑफ द फुल ट्रेड साइज। मार्जिन जो होता है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है कि आपको चाहिए ही चाहिए ट्रेड को ओपन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि लेवरेज से ही सारा काम चल जाएगा। अगर मान लो आपके पास $100 हैं अकाउंट में, तो आपके पास अगर कोई ट्रेड आपको खोलनी है तो आपके पास एटलीस्ट कुछ मार्जिन उसका होना चाहिए। इसका भी हमारे पास एग्जांपल है, तो वो देख के आई विल एक्सप्लेन। सो लेट्स जस्ट से आपका जो ट्रेड साइज है वो है $10,000 का। आपकी जो लेवरेज है जो अभी हमने यहाँ बात करी वो है 100 की, और आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड रह जाएगा वो रह जाएगा आपने $10,000 को 100 की लेवरेज से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आता है 100। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको $10,000 तक की ट्रेड्स लेनी है तो कम से कम आपको $100 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब आप वो डिपॉजिट कर दोगे और आपका लेवरेज जो है वो 100 है, सो आफ्टर दैट यू कैन टेक पोजीशंस अप टू हियर। समझ में आया आप लोगों को कि मार्जिन का क्या रोल होता है? मार्जिन में ऐसा होता है कि कुछ % आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, बाकी आपको जो ब्रोकर से मिल जाता है, तो ऐसे करके 100% बनता है, वो हो जाती है लेवरेज। लेकिन इसमें जो आपका मार्जिन हमें चाहिए वो कम से कम, इस एग्जांपल को देखते हुए, $100 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए मार्जिन, सो जस्ट विद $100 you can open a trade worth of $10,000. सिंपल रूल, हायर लेवरेज इज इक्वल टू स्मॉल मार्जिन रिक्वायर्ड। आपकी लेवरेज जितनी ज्यादा होती जाएगी, आपका जो मार्जिन है वो छोटा होता जाएगा। अगर यहाँ पर लेवरेज आपकी 100 की जगह 400 होती, तो शायद आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता वो होता 20, क्योंकि आपके पास 400 टाइम्स की लेवरेज है। तो आपके पास अगर $20 भी होते तो भी आप खोल सकते थे। सो दिस इज, आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट इट ऑल्सो मीन्स हाई रिस्क, बिकॉज इवन स्मॉल प्राइस मूव्स कैन लीड टू बिग गेन्स और लॉसेज। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेवरेज एक ऐसी चीज है कि अगर अगेंस्ट गई तो आपका अकाउंट कंप्लीटली ब्लो हो सकता है, लेकिन अगर उसने आपको फेवर दिया तो यू कैन मेक 3 times 4 times ऑफ योर कैपिटल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबको समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप अगेन। फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, आई थिंक ऑल गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। की ट्रेडिंग टर्म्स, कुछ की ट्रेडिंग टर्म्स के बारे में भी बात करते हैं। पिप क्या होता है? पिप जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइस। इस एग्जांपल में हम देखें कि अगर प्राइस गया है 1.1000 से 1.1001, तो ये बनता है एक पिप। जो लास्ट वाला है, ये 0 से 1 चेंज हो गया, इसको हम बोलते हैं एक पिप। ओके, अगर ये यहाँ पर 11000 से 1.1010 हो जाता तो वो होते 10 पिप्स। ओके, तो ये पिप्स जो होती है वो ट्रेडिंग की लैंग्वेज होती है कि कितने पिप्स ऊपर गया, कितने पिप्स नीचे गिरा, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। स्प्रेड जो होता है वो डिफरेंस होता है बाय का और सेल का। आप हमेशा देखते हो ब्रोकर के पास देयर इज अ बाय प्राइस, देयर इज अ सेल प्राइस। बाय प्राइस थोड़ा सा अलग होता है, सेल प्राइस उससे थोड़ा अलग होता है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस होता है उनके बीच का, हम उसको स्प्रेड बोलते हैं। स्टॉप लॉस, आई एम श्योर सबको पता होगा, यहाँ पर आप अपनी ट्रेड, आप अपना सारा कैपिटल लूज ना कर दो, इसलिए स्टॉप लॉस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो आपको बहुत हेल्प करता है। सेम थिंग विद द टेक प्रॉफिट। अगर आपको अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है तो आप वहां पर उसको लगा सकते हो। जब वो पोजीशन वहां पहुंचेगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, बट थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। इफ यू नो दिस, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, now live platform 9x market, let's go into this, let's see. Okay, I'll do one thing, I will show you. मैं आपको जो प्लेटफॉर्म है वो बाद में दिखाऊंगा, पहले थोड़ा मार्केट को पूरा
कवर कर लेते हैं स्लाइड्स को, देन आई विल नॉट कम बैक ऑन द स्लाइड्स एंड आई विल शो यू द प्लेटफॉर्म। सो लास्ट में अगर हम देखें कि कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, किसी ने अभी आई थिंक क्वेश्चन भी पूछा था कि स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी बताओ। ऑफ कोर्स द वेबिनार जो है वो आज हमारा किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे नहीं है, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, बट कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, आई विल शेयर विद यू गाइस। नंबर 1, ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में और आप उसी साइड में ट्रेड करते हो तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। गोल्ड इसका फैंटास्टिक एग्जांपल है कि लास्ट 3-4-6 महीने से आप देख रहे हो कि वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। जो भी लोगों ने सेल करा होगा उनका बुरा हाल हो गया होगा, और जो लोग उसको बाय कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बनाते गए होंगे। ये एक प्राइम एग्जांपल है कि उन्होंने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करा और उन्होंने प्रॉफिट बनाया, और जिन्होंने ट्रेंड को फॉलो नहीं करा, जो ट्रेंड के अपोजिट गए, अब हम सब देख सकते हैं, चार्ट्स हमारे पास हैं खोल के कि क्या हुआ कि सेल की जगह मार्केट ऊपर गई और उन लोगों का लॉस हुआ। यूज टूल्स लाइक मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, एंड द गोल इज टू राइड द ट्रेंड फॉर लॉन्गेस्ट पॉसिबल। तो ट्रेंड का पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, मूविंग एवरेज कर सकते हो। ये मेरे जो पुराने वेबिनार हैं, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दैट कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मूविंग एवरेज क्या होता है, ये सब मैं अपने प्रीवियस वेबिनार्स में कवर कर चुका हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग एक और कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रैटेजीज का, ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक न्यूज़ रिलीजेस, एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। कभी कभार यूएस की बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं, उस टाइम पे मार्केट क्रेजी हो जाती है। 5-5 मिनट के कैंडल्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स के बनते हैं, 25 पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स, बहुत ही खतरनाक तरीके का मोमेंटम आता है, वॉलीटिलिटी गोज क्रेजी। तो उस टाइम पे जब न्यूज़ रिलीज़ होती है, काफ़ी लोग उस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट इट्स अ वेरी रिस्की टाइम। बेस्ट है कि आप लोग दूर रहो। इफ़ यू आर न्यू, न्यूज़ पे ट्रेड करना इज़ वेरी वेरी रिस्की, बट जिन लोगों को आता है दे मेक अ लॉट ऑफ मनी विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये भी एक चीज़ है कि आप जब कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, जैसे NFP, CPI, ये सारी यूएस की न्यूज़ हैं, और यूएस की न्यूज़ बहुत पावरफुल न्यूज़ होती है। तो उस टाइम पे अगर आप करोगे ट्रेडिंग और आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आपकी एक स्ट्रैटेजी है, तो यू विल ऑलवेज सी गुड गेन्स। रिक्वायर्स क्विक रिएक्शन एंड गुड रिस्क कंट्रोल। वही जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क आपका कंट्रोल्ड होना चाहिए, और इसमें आपको बहुत क्विकली ओपन इन एंड आउट करना पड़ता है। विद इन अ मिनट्स मार्केट ऊपर से नीचे चली जाती है, ये होता है न्यूज़ इफेक्ट। और फिर आती है स्कैल्पिंग, जो मेरे अभी किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा था। सो मेक मेनी स्मॉल ट्रेड्स इन अ शॉर्ट टाइम। स्कैल्पिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, और उसमें जाके आप जो है जो छोटे छोटे प्राइस मूव होते हैं उन पे जाके ट्रेड लो। उनकी भी स्ट्रैटेजी होती है, कुछ लोग चार्ट पैटर्न्स बना के करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के करते हैं, कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक बना के करते हैं, कुछ लोग FVG का यूज़ करते हैं, इंड्यूसमेंट का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको स्कैल्पिंग सच में करनी है, क्योंकि ये क्विकेस्ट वे है प्रॉफिट बनाने का, तो आपका ब्रोकर जो है वो लो स्प्रेड होना चाहिए। अगर स्प्रेड कम नहीं है तो आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट नहीं बना सकते। दिस इज़ वाई वंस अगेन 9x मार्केट, अभी तक जितने भी लोग उस पे हैं और स्कैल्पिंग कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ द न्यूज़ या फिर ये स्मॉल टाइम फ्रेम इवेंट्स, क्योंकि स्प्रेड इतना लो है 9x मार्केट्स का कि वो वहाँ से ईजिली उसको कवर करके प्रॉफिट बना सकते हैं, वंस अगेन विद करेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। फिर आ जाता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करूं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए वो 1:3 होना चाहिए, कि अगर आप $100 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम आप $300 उस पर बनाओ। इफ़ यू विन यू गेन 300, अगर आप जीतते हो तो आपको $300 मिलेंगे। इफ़ यू लूज यू ओनली लूज $100। तो ये एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि इसमें आप 100 रिस्क पे लगा के $300 बना रहे हो, ना कि $300 रिस्क पे लगा के $100। ये एक बैड एग्जाम्पल है, और ये गुड रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। ओनली टेक ट्रेड्स वेयर पोटेंशियल रिवॉर्ड इज ग्रेटर देन द रिस्क 1 to 2 या 1 to 3। वही जो मैंने आपको समझाया, कभी भी ऐसा ट्रेड मत लो जहां पर आपका $300 लगा के आप सिर्फ $100 बना रहे हो। आप इसका हमेशा उल्टा करो, तब आपको ज्यादा फायदा होगा, वरना आपका कैपिटल बहुत जल्दी क्लीन अप हो जाएगा। इवन इफ यू विन जस्ट 40% ऑफ द टाइम यू कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल। 100 में से 100 आपको लाने की इसमें भी जरूरत नहीं है, 100% होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 40% भी इसमें आपका विनिंग रेशो रखते हो, विनिंग रेट रखते हो, आप स्टिल मार्केट में प्रॉफिटेबल एग्जिट लोगे, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा एक पोल क्वेश्चन, व्हाट इज अ पिप इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं। व्हाट डू यू नो गाइस, अभी हमने ये पढ़ा भी है, मैंने आपको पिप एक्सप्लेन भी करा था।
तो थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू नो कि कोई एनीवन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सी द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट। ओके, एनीवन एल्स वांट गिव इट अ ट्राई? सी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ सी, काफी लोगों के सी आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अपना जो स्मॉलेस्ट प्राइस का मूवमेंट होता है, जो मैंने आपको सिखाया अभी, हम उसको पिप बोलते हैं। तो वेरी गुड ऑडियंस, नाउ आई नो आप लोग अटेंशन पे कर रहे हो। वेरी गुड। एंड व्हाट इज स्कैल्पिंग इन ट्रेडिंग? दीज आर योर ऑप्शंस। इसका भी फटाफट से आंसर दे दो। जिन जिन लोगों ने पिछले वाले का सी बोला था, गाइस वेल डन। और ये स्कैल्पिंग वाले का भी आंसर, मेक मेनी क्विक एंड स्मॉल ट्रेड्स। आई कैन सी लास्ट टाइम कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था लास्ट क्वेश्चंस पे, बट अभी मैं देख रहा हूँ 5-10 मिनट के अंदर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कुछ सीख गई है। तो बिग वेल डन। ओके, ये किसी ने आंसर इसका दिया है ए। माय फ्रेंड पे अटेंशन, ए इज नॉट एन आंसर। स्कैल्पिंग होती है कि आप जल्दी मार्केट में जाओ, ट्रेड लो और उसको विद इन मिनट्स बंद करो, प्रॉफिट बुक करो। ए जो है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म मींस कि आप उसे हफ्तों तक बंद नहीं कर रहे हो या महीनों तक बंद नहीं कर रहे हो। तो पे अटेंशन। ओके, एंड देन इफ वी मूव ऑन, सो व्हाई MT5 विद 9x मार्केट? जिन लोगों को MT5 के बारे में मालूम है, दे नो MT5 किस तरीके से काम करता है। आप 9x का सर्वर वहाँ कनेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट हैपेंस, आपको फास्ट और रिलायबल ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलता है। इधर आपने बटन पे क्लिक करा, बाय सेल, और आपकी पोजीशन हो गई ओपन या क्लोज। वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो मैंने आपको बताया 400 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। पावरफुल टूल्स और इंडिकेटर्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हो गए या ये इंडिकेटर्स जैसे मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेज एंड ऑल। एक्सेसिबल ऑन डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब, ये तीनों पे चलता है। एंड आइडियल फॉर बोथ बिगिनर एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर। एंड एजुकेशनल मटेरियल जो अभी हम कर रहे हैं कि हम आपको वेबिनार भी दे रहे हैं फ्री में, फिर 1-to-1 सपोर्ट भी देंगे ताकि आप सीखो। विदाउट नॉलेज अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आ जाओ 9x पे डिपॉजिट करो, स्टार्ट करो, 90% जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं वो लॉस ही करेंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यू नीड द नॉलेज एज वेल। जब आप पैसे को नॉलेज से कंबाइन करते हो, दैट्स वेयर आपको जो रिजल्ट्स हैं, दैट्स वेयर यू सी द रियल रिजल्ट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि पैसे डाल देंगे लेकिन नॉलेज नहीं है, एंड रिजल्ट 4-6-8 दिन में लॉस ही होना। तो नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करो, और सब चीज़ों में टाइम लगता है। हम स्कूल जाते हैं 12 साल पढ़ते हैं, 1 से 12वीं क्लास तक, तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं। और हम ट्रेडिंग में चाहते हैं कि बस 4 दिन में 100 का 1000 कर दें, ऐसा नहीं होता। पेशेंस इज द की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। ज्वाइन 9x मार्केट टुडे। मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेजेस बताए हैं कि वाई यू शुड बी विद 9x मार्केट। ये एक ट्रस्टेबल ब्रोकर है, हम रेगुलेटेड हैं, हमारे पास लाइसेंस्ड है, काफ़ी हम लाइसेंस ब्रोकर हैं बेसिकली। तो इसीलिए एक लाइसेंस ब्रोकर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपना ब्रोकर चूज करते हो। टाइट स्प्रेड एंड लो ट्रेडिंग कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया कमीशन का और लो स्प्रेड का। लो स्प्रेड 9x से अच्छे, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी इवन इफ यू आर स्कैल्पिंग। फास्ट एग्जीक्यूशन है, जो मैंने अभी आपको बताया। वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया। मल्टी प्लेटफॉर्म है कि आप डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो, मोबाइल पे भी, वेब पे भी, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। एंड सपोर्ट एंड एजुकेशन जो आपको इस टाइम मिल रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा डिपॉजिट एंड विड्रॉल का। आई थिंक मैं ये आप लोगों को वेबसाइट पे ही दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखते हैं। आई थिंक आज के लिए मैंने आपका टेस्ट ले लिया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा करा है। मैं 5 मिनट में आप लोगों को ज़रा एक बार प्लेटफॉर्म दिखा दूँ, फिर हम लोग Q&A करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के अब आंसर देते हैं। तो लेट मी ओपन एंड सी। 1 सेकेंड, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा है यहाँ पर चार्जेस टू स्टार्ट ट्रेडिंग। जैसे मैंने बताया कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सीधा सा डिपॉजिट करो। आप जो भी उसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट फॉर एग्जांपल बनाते हो, जब आप उसे विड्रॉल करोगे उसमें कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट मतलब आज ओपन करके 3 दिन बाद क्लोज करते हो तो स्वैप करके एक चीज़ होती है वो कटती है, लेकिन वो बैंक्स को जाता है, वो कंपनी को नहीं जाता, लेकिन वो बहुत मिनिमम होता है। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं। अगर आपने अभी ओपन करके 2 घंटे में बंद कर दी या सेम डे में बंद कर दी, कोई चार्ज नहीं लगता। If we place withdraw request from India, then money will get credit in INR or USD. आपने जो भी मेथड यूज़ करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा विड्रॉ करने के लिए। और जो आपके पैसे हैं आपने INR में यहाँ से डिपॉजिट करे थे इंडिया से, तो वो आपको वापस भी INR में ही मिले। ओके। पर ट्रेड हाउ मच चार्जेस यू डिडक्ट, कैन यू शो वन एग्जाम्पल। जो मैंने आपको अभी बताया, किसी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा था, कोई चार्ज नहीं है, हम कुछ भी डिडक्ट नहीं करते, तो कुछ दिखाने के लिए है ही, तो उसका आपको आंसर आई गेस ऑलरेडी मिल चुका है। सर मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं? यार ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि मुझे हर वेबिनार में पिछले 6 महीने से आता ही आता है। गारंटेड क्वेश्चन है ये कि कोई कुछ पूछे ना पूछे,
ये ज़रूर पूछते हैं। और इसका एग्जाम्पल या फिर जो आंसर है मैं वो हमेशा यही देता हूँ कि जितना कम डिपॉजिट करोगे ट्रेडिंग उतनी मुश्किल होती जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम $100 डाल के $1000 बना लेंगे, मतलब 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए। वेरी वेरी लेस चांसेस कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 1 लाख रुपए डालेंगे $1000 और कोशिश करेंगे कि हम उससे 10,000 बनाए। वो जो है वो पॉसिबल है, और ऐसा नहीं, कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो जितना ज़्यादा बड़ा अकाउंट उतनी इजी ट्रेडिंग, जितना छोटा अकाउंट उतनी मुश्किल ट्रेडिंग, उतने ज़्यादा चांसेस लॉस खाने। ये आपका मैंने बेस्ट आंसर दे दिया आपको। विड्रॉल कितने टाइम में आता है? यूजुअली हम बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को कि टाइम लगता है 6-8 घंटे, बट हमारी जो टीम है विदिन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स प्रोसेस कर देती है। बट देयर आर टाइमिंग्स के जैसे वीकेंड है या कुछ है तो हम बोल के रखते हैं कि आप एटलीस्ट 24 आवर्स तक वेट करो। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी को इससे ऊपर लग जाए, अनलेस उसने, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि अपनी इन्फॉर्मेशन ही हाफ दी हुई है, तो उसमें 24 क्या हो सकता है 3 दिन 4 दिन भी लग जाएंगे अगर वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, अपनी अपडेट करेगा क्लाइंट। तो जो आपको मिल जाएगा आपका विड्रॉल वो 2 से 3 घंटे में यूजुअली, या इससे भी कम टाइम में आ जाता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट। अगला क्वेश्चन है, सर फॉर जस्ट लर्न वी कैन स्टार्ट विद ₹100। आप ये देखो कि ₹100, रुपीज़ कहाँ की करेंसी है? इंडिया की करेंसी है। आप ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ₹100 आई थिंक शायद $1 कुछ बनता है, आप उससे कुछ भी ओपन नहीं कर सकते। और अगर करोगे भी प्राइस 5-10 पिप इधर उधर गया, खत्म, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ₹100 इज फॉर ग्लोबल मार्केट में भी। इंडियन मार्केट में आपको शायद इससे कुछ फायदा हो जाए क्योंकि वो इंडियन मार्केट है और आपका करेंसी भी इंडियन है, लेकिन आप $1 ग्लोबल करेंसी में जा रहे हो और वहां पर आप बोल रहे हो कि ₹100 से कुछ होगा। ₹100 वहां जाके सिर्फ $1-1.5 बन जाता है, उससे कुछ नहीं होता। तो आपको एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट चाहिए, ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो फिर हम लोग रैप अप करते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चंस अगर और आते हैं तो लेता हूँ। सर $50 डिपॉजिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही है कि $50 से मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप एक्सपेक्टेशंस ऐसी ना रखें कि आप उस $50 के अकाउंट को $500 पहुंचा दोगे। इसके अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे कि कितने चांसेस हैं तो मैं शायद बोलूँगा 0.5। तो अब आप खुद देख लो, बाकी पॉसिबल है $50 का डिपॉजिट एक्सेप्टेबल। तो ये है, सारे लोग जो हैं इंडिया से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट से लोग ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी हैं। अगर आपको अपना भी रिसर्च करना है तो यू कैन डू। तो यस, ये आपका मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। तो वन लास्ट क्वेश्चन, एनीवन? एंड वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप। एक क्वेश्चन ऐसा पूछो जिसको मजा आए और सब लोग एंजॉय करें, कोई इस तरीके का क्वेश्चन। गिव मी समथिंग, अ क्वेश्चन व्हिच एवरीबॉडी सेज या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर यूपीआई से विड्रॉल कर सकते हैं क्या? यस, वो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन, कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड? ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो ना, ये आपके डिपॉजिट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। आप ये ध्यान दो कि ये सेशन आपके डिपॉजिट्स के ऊपर नहीं है, ये सेशन है नॉलेज लेने का ट्रेडिंग के बारे में। तो अगर any questions you ask about trading, that would be fantastic. So one question I have, what are the main risk management techniques used in CFD trading? अच्छा, ये किसी ने मुझसे पूछा है, but this person is English, तो I will answer this in English और फिर मैं हिंदी में भी थोड़ा सा explain कर दूंगा। So the question you ask, what are the main risk management techniques you use? First thing, stop loss. Stop loss is a mandatory thing. You have to use it all the time. Without this, it becomes really difficult to handle the risk. And then the time zone as well. Risk is also in the form of what time you are trading, in what session you are trading. If you are trading in a session when the news is about to come, there are high chances that you're taking a very high risk. So these are couple of things. With few others, you always need to make sure that you be careful of. तो जो मैंने इसका आंसर दिया है वो यही दिया है कि आपको कोशिश यही करनी है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को जो है स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करो। और जब न्यूज़ आ रही है हमेशा कैलेंडर देखो, इकोनॉमिक कैलेंडर देखो और ये चेक करो कि आज कोई बड़ा इवेंट या बड़ी न्यूज़ तो नहीं है। मान लो आपने एक बाय पोजीशन खोल दिया और कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट आने वाला है, एनएफपी काइंड ऑफ टाइप, जो मार्केट को बिल्कुल चेंज कर देगा, उसमें आपके चांसेस, आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा कि आपको शायद लॉस हो जाए। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा रखो। हाउ टू लर्न टू ट्रेंड इन कंपनी? हाउ टू लर्न ट्रेंड अगर आपको सीखना है कि किस तरफ है, अप है या डाउन है, इसके लिए मेरे और भी सेशंस होने वाले हैं। या आप जब डिपॉजिट करोगी तो आपको मैं 1-to-1 एक सेशन दे दूंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है,
ये मैं 1-2 मिनट में आपको आंसर देके बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर हम इसका सेशन करें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, इफ आई डू मल्टीपल ट्रेड एंड टेक स्मॉल प्रॉफिट देन विल इट बी कंसिडर एज स्पैमिंग एंड विल यू ब्लॉक माई अकाउंट? क्यों करेंगे? वी विल नॉट डू इट। इफ यू आर बीइंग जेन्युइन, यू आर वर्किंग विद अ स्ट्रैटेजी कि आप मल्टीपल पोजीशंस खोल रहे हो, बट हाँ इट कैन नॉट बी वेरी सस्पिशियस कि अगर उसमें ऐसा कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है। काफ़ी लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं कि वो स्मॉल प्रॉफिट बना रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, सबकी स्ट्रैटेजी है। बट कुछ मैनिपुलेट होता है तो वो तो फ्लैग अप हो ही जाता है। बट आई थिंक यू गाइज आर हार्ड वर्किंग पीपल, तो आप लोग नहीं करोगे तो ठीक है, आप करो। सर आई एम अ स्टूडेंट, ट्रेडिंग एज अ कैरियर कैसा है? जस्ट गिव यू एन एग्जांपल स्वप्निल, ये मेरी फील्ड बिल्कुल भी नहीं थी आज से 10 साल पहले। ओके, मैं आईटी का हूँ, मैं एमएससी ग्रेजुएट हूँ आईटी में, बट मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ करी क्योंकि मुझे इसका पैशन था। मुझे 10 साल पहले दिखा कि इस फील्ड में कितना पैसा है, कोई और जॉब इतना पैसा नहीं देगी जितना अगर आपने इसको मास्टर कर लिया मिलेगा। मैं क्यों इस फील्ड में जॉब करता हूँ, क्यों इस फील्ड में काम करता हूँ? क्योंकि इस फील्ड में मुझे रोज़ कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि इवन मैं भी जिस लेवल पे हूँ, देयर आर सो मैनी पीपल जो मुझसे भी हाई लेवल की एजुकेशन रखते हैं, तो मुझे उनसे सीखने का मौका मिलता है, उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ बैठने का, शेयर करने का मुझे मौका मिलता है। तो इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अगर मैं कहीं और जॉब कर रहा होता तो मुझे छुप छुप के ट्रेडिंग करनी पड़ती कि मेरा बॉस ना देख ले। यहाँ अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, मैं खुलेआम ट्रेड कर सकता हूँ, प्लस सेम इंडस्ट्री में काम भी कर सकता हूँ। तो एज अ करियर दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। बट वंस अगेन आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए। वेयर आर यू फ्रॉम? लंडन। सिंपल। वे टू चेक न्यूज़? 9x मार्केट का कैलेंडर पेज है वेबसाइट पे, यू कैन फाइंड इट देयर। How to connect next time with you? Just say my name to anyone who you contact at 9x Market that connect me to the superstar Sahil and they will do it. Okay, so I will talk to you then. किसी से भी बात करके जस्ट उनको बोल देना, तो दे विल कनेक्ट यू विद मी। ओके, आप अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ जाके आपको कॉल आएगा या आपका जो भी वहाँ पर RM होगा रिलेशनशिप मैनेजर, या आप ईमेल भी कर सकते हो 9x के सपोर्ट ईमेल support@9xmarket.com, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, एनी चार्जेस? नहीं, मैं कुछ चार्ज नहीं करता। जो मेरे पर्सनल सेशन भी हैं वो भी मैं फ्री रखता हूँ। द ओनली थिंग आई वांट कि आप डिपॉजिट करो ताकि आप ट्रेड करो, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ठीक है, आई थिंक दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। हाउ मच? ठीक है, मैं 250 मैंने आपको बोला है, अगर आप 250 से मिनिमम करते हो तो आपको बोनस भी आप लूज़ करते हो, तो एटलीस्ट 250 करो ताकि आपको वो 20% का बोनस भी मिले, जो कि अराउंड $50 बन जाता है। तो आपका 250 का अकाउंट समवेयर अराउंड 300 का बन जाएगा। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। आपको मेरे साथ एक सेशन भी मिल जाएगा और काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब आप 1-to-1 बैठोगे। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग आए एंड आप लोगों ने अपना टाइम दिया। सो वंस अगेन थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। ओके, बाय बाय।